प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? Which part we have complete the type of surgery ना, उसका पीएफ मैंने भेज दिया है। Yes, sir. चैप्टर का पीडीएफ आपको मिला? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू बोर्ड वो आ गया है टाइम सिलेबस, हिसाब से आपको पढ़ना है इस साल, तो उसको भी हम आपको भेज देते हैं। आपका जो सिलेबस है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अपना वर्क ग्रुप आप ऑन करिए। देखिए तो फर्स्ट टर्म तो 9th का भेज दिए हैं क्या? Yes, sir. 9th का है। रुक जाइए, 10th का भेज रहे हैं। देखिए क्लास 10th का मैंने भेजा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए अपने। सर अभी 3 चैप्टर और है टाइप ऑफ सर्जरी में से। ये कल अभी Yes, sir. Footprint. यस कल यस सर। हमको मिला। अब इसमें थोड़ा सा छूटा है, एक पेज और है, भेज रहा हूँ। ये बाद में जो मैंने भेजा है ये फुटप्रिंट विदाउट फीट चेक बुक से है। So the exam which is going to be held is going to be have a type of MCQ questions. It depends upon the exam whether it will be online or offline. It's depend upon the situation of the the country, that whether the corona is how much effective. If the exam is online, only online, so it may be objective, but in case of offline you will have 20 marks of objective, remaining subjective, descriptive. And Okay, the sir. timing is also, the government has prepared the situation. Actually there is a vision in the mind of the government, if this corona will continue till the next year, when your exam will be held, for that the government is preparing the syllabus accordingly. Means you have to appear in exam in the month of November or December. That will be your half yearly, exactly the half part of syllabus which I sent you, term exam. And in case of the government will not be able to conduct the annual exam like this year, then this half yearly, means first term and 3 unit test which I will take, every teacher will take unit test, all that exams will be the base of your class 10th. And if the situation will be normal, then again in the month of March your board exam will held. That the syllabus will be half, the second term, which I will send you further in future. This is the first term, but the government is preparing the situation according to corona scenario. यदि ये रह गया कंटिन्यू तो वो इस तरह से प्रिपरेशन इस तरह से हो रही, यदि कोरोना रह गया कंटिन्यू तो इस बार की तरह रिजल्ट बनाने में परेशानी ना हो इसका रिजल्ट में. And one thing yesterday in newspaper, it was in the exam that don't take lightly the home examination. It will cost for you. Don't take lightly.
any exam that will play a major role in your class 10th board. This corona will continue. It means it is a major role. So be alert. Don't take it lightly. Don't think that the test is a test, half yearly is half yearly, and the pre-board is pre-board. Simply be alert and always appear each and every exam very seriously, because that may be helpful for your exam. So this was the syllabus of your first term. And one thing more is that we have a notification of board of 120 pages. In that, I have seen the board has added two things. One is the marks on the notebook, like copy and all. Second, the marks on speaking and learning skill. Speaking, learning, skill. So, assessment. Speaking and learning assessment. So, that will be the kind of oral which will be held. पहले ऐसा होता था कि हम लोग oral लेते थे. Speaking, learning का एक एग्जाम होता था, उसकी रिकॉर्डिंग होती थी. सीडी बनाई जाती थी या डीवीडी, जो भी आप कहते हैं, और उसको बना के बोर्ड को हम लोग भेजते थे. बाकायदे हर बच्चे का 2 से 3 मिनट तक उसमें इंट्रोडक्शन होता था. व्हाट इज योर नेम, तो बताता था. इन विच सिटी डू यू लिव, आई लिव इन वाराणसी. टेल मी एटलीस्ट 2 क्वालिटी ऑफ योर सिटी, बताते थे. उसके बाद एक टॉपिक मैं देता था, अपने से एक टॉपिक, 2 लोगों को एक साथ बिठाता था. टॉपिक मैं देता था कि जैसे मतलब साइड इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, जैसा टॉपिक है, या गर्ल्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी. तो एक उसमें बोलेगा, फिर बाद में दूसरा भी बोलता था, फिर मैं क्वेश्चन पूछता था. जो आप बोलेंगे उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछूंगा. 2-2 क्वेश्चन पूछता था. उसके बाद फिर आप तो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक की रिकॉर्डिंग होती थी. वो मोबाइल से रिकॉर्ड करके हम लोग डेली उसको कंप्यूटर में डालते थे, और कंप्यूटर से फिर लास्ट में एक सीडी बनती थी जो कि बोर्ड को जाती थी. तो ये प्रोसेस भी होती आई है, होती रही है, पहले भी होती रही है. तो फिर से शुरू किया गया है इसको. तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा. इसके साथ ही साथ आपकी कॉपी लाई जाती थी. तो कॉपी में मार्क्स का अलॉटमेंट होता है नोटबुक में. अभी आप घर पे फ्री हैं, बैठ के नोटबुक अच्छे से बना लीजिए. छोटी छोटी चीजें बड़ा काम कर जाएंगी, इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए. पिछली बार की तरह गलती ना हो. पिछली बार यानी इस साल ऐसे कुछ बच्चे हैं मेरी जानकारी में हैं जिन्होंने प्री बोर्ड अपना बहुत लाइटली दिया, इसलिए कि उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था, और लाइटली देने की वजह से वही प्री बोर्ड का एग्जाम उनके एनुअल एग्जाम का बेस बन गया. तो आज हम उनको देख रहे हैं कि वो बच्चे 90+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्री बोर्ड उन्होंने खराब कर दिया है. अब प्री बोर्ड खराब कर दिया तो क्या करें. वही तो रिकॉर्ड है जो जा रहा है. अब उसमें हम बदल नहीं सकते ना. हम आपको ऐसे बिना वजह मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक डेटा है प्री बोर्ड का, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. वो तो रहेगा. और अभी पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि स्कूल का हर टेस्ट, हर एक्टिविटी, जो भी आपसे कहा जाए. अब मैंने एक बार कह दिया कॉपी बना लीजिएगा, तब ये मैं सोचिएगा कि जब हम मांगना शुरू करेंगे तब हमने, आप ये ना कहिएगा सर आपने तो बताया नहीं था, आप बस कहते हाँ कॉपी बना लो. अब हम बंदूक लगा के थोड़ी कहेंगे कॉपी बना लो, नहीं गोली मार देंगे. कॉपी बना लो बोल दिए, तब आप बना लीजिए कॉपी. कॉपी लिखते रहिए, क्योंकि उसकी जरूरत जब पड़ेगी तब हम मांगेंगे उसको, और तब आप उसको हम मतलब उसकी जरूरत है इसीलिए बनाइए, ये सब बातें नहीं.
बस कॉपी बनाइए, इसकी जरूरत है, ये चीजें होनी चाहिए। देख लीजिएगा उसको, देखिए सिलेबस पे वाले पेज को एक बार खोलते हैं। यूनिट टेस्ट करो। इसमें जो पैराग्राफ है, जो रीडिंग सेक्शन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग स्किल को कंप्लीट करते हैं, मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ। राइटिंग सेक्शन देखिए, लेटर टू एडिटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल और लेटर ऑफ कंप्लेंट में बिजनेस। ये तीनों बहुत सिंपल है, तीनों का नेचर लेटर ही है तीनों। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको लेटर ही केवल पढ़ना है, कि लेटर तीनों जो हैं वो आपको बहुत एक ही जैसे हैं, सिमिलरिटीज है तीनों में, फॉर्मल है तीनों, एडिटर को भी, कंप्लेन भी और बिजनेस भी। नीचे आइए, टेंसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, मोडाल्स का भी अभी मैं आपको भेजूंगा चैप्टर एक्सरसाइज। अब बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड है, डिटर्मिनस है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चंस है, ये सब भी धीरे धीरे करके कराता हूँ। तो राइटिंग सेक्शन का जो भी काम जाएगा आप, उस राइटिंग सेक्शन के काम को आप राइटिंग सेक्शन की कॉपी पे फेयर करेंगे। जब मैं जिनको लिख दूंगा राइट इट इन योर कॉपी, तो आप समझ जाइएगा इसको फेयर कॉपी में करना है। और वो क्या है, राइटिंग सेक्शन लिख दूंगा तो आप समझ जाइएगा। राइटिंग स्किल या राइटिंग सेक्शन, ग्रामर रहेगा तो ग्रामर लिख दूंगा, समझ जाइएगा। बाकी जो लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट है, पोयम है कि फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ये तो आप चैप्टर का नाम देख के समझ ही लेंगे। अब हम लोगों को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है, और उसी हिसाब से आप अपनी पुरानी प्रिपरेशन तुरंत कर लीजिए, क्योंकि पुराना वाला जो है वो सब काम आएगा इसमें। पुराने वाले प्रिपरेशन सब इसके लिए आपको यूजफुल है। तो अभी आप इसको पूरी तरह से अपनी कॉपी को रेडी करिए। जितना आपको टेंस में मैंने भेजा था, एक प्रीपोजिशन भी टॉपिक भेज दिया था, लिख लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, लिख लिए तो प्रीपोजिशन कोई, अभी सिलेबस आया है कल, इसलिए पुराने सिलेबस के मुताबिक आपको प्रीपोजिशन पढ़ना था, हमने पुराने के हिसाब से पढ़ा दिया उसको। लेकिन अब पता चला कि सिलेबस में से प्रीपोजिशन नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख लिए हैं तो उसको ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसको हम लोग कंटिन्यू करके पूरा कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। और अब हमको जो पढ़ना है उसके लिए हम आपको बता दें, हमारे पास एक दूसरा चैप्टर रहेगा कल के लिए, द थिप्स स्टोरी। थिप्स स्टोरी ये जो है कहानी है कि थिप की, इसके लिए आप कल बुक लेके रेडी रहेंगे। हम लोग कल इसकी रीडिंग करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और बाकी राइटिंग सेक्शन का लेटर का सिलेबस, कुछ चीजें मैं आपको अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप उसको देखिएगा कि लेटर क्या होता है। पहले लेटर का इंट्रोडक्शन भेजूंगा मैं, लेटर होता क्या है, उसके बाद फिर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ये दोनों चीजें होती हैं, आप पढ़े भी हैं पहले की क्लास में। फॉर्मल में 3 तरह के लेटर हैं, वो जाएंगे, और उनमें से आपको कौन कौन सा करना है। तो मैं कुछ कम सॉल्व्ड एग्जाम्पल भेजूंगा, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी भेजूंगा जिनका सलूशन नहीं रहेगा, केवल क्वेश्चन रहेगा। आपको उसका लेटर अपने से ड्राफ्ट करना है, अपने से ड्राफ्ट करके लिखना है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए लिखने की। बट फर्स्ट वी हैव टू रीड द रूल हाउ टू राइट, सेकेंड the way of writing, with the help of example, the structure of the letter, from where you have to start, what is the starting position, mid position and end position,
and ultimately what is the end of the letter. So everything should be as per according to rule, है ना? As per rule should be there, and then after you have to complete it. So we will do the work tomorrow, the second chapter, the thief's story, and before that आप अभी क्लास को वो करेंगे, अभी अपने फोन को लिए रहिए, मैं लेटर वाला सेक्शन अभी भेज रहा हूँ, उसको देखिए, अभी फोन को डिस्कनेक्ट ना करिए, लिए रहिए। सर हाँ बोलिए। सर ये जो लिटरेचर के नीचे लिखा है, जो आप फोटो भेजे, उसमें लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट और टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशंस। तो ये जो लाइन लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? एक सेकंड मैं देखूं। Questions based on extracts text to assess interpretation, inference, expectation beyond the text and across the text। ठीक है, जो ये लिटरेचर से क्वेश्चन होंगे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे, टेक्स्ट बेस्ड होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लिखने होंगे स्टोरी से ही जुड़े, लेकिन बियॉन्ड द स्टोरी होंगे, माने एग्जैक्ट उनका इस चैप्टर से आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन वो जुड़े रहेंगे इसी से। और जब हम आपको कराएंगे आपकी एक्सरसाइज तो उसमें बता देंगे कैसे, देखिए आप जो लिखा है वो क्या चीज है। ओके सर। जैसे कोई इवेंट ऐसा दे देगा जो कि उस चैप्टर में वो इवेंट नहीं हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड रहेगा, रिलेटेड। देखिए इसकी देखिए लेटर टू एडिटर का मैंने भेजा है आपको फॉर्मेट। लेटर टू एडिटर क्या कैसे है, फॉर्मेट को आप देख के अंदाजा लगाएंगे कि वैसे आपने इसको पहले पढ़ा भी है, लेकिन एक बार देख लीजिए इसमें कैसे आपको लिखना होता है, कैसे करना होता है। इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। अब इसको लिख के इतना, और मैं इसका सैंपल भेज दूंगा आपको, एक दो ऐसे लेटर भेजूंगा जो कि सॉल्व्ड, उसी बेसिस पे आपको कुछ अनसॉल्व्ड लेटर भी करने हैं। मैं जो भेजूंगा उसमें सॉल्व्ड लेटर रहेंगे, और उसके बाद कुछ उसमें अनसॉल्व रहेंगे जिनको आपको लिखना है, तो आप उसको लिखिएगा। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है, करेंगे तो आ जाएगा। तो आप अपना ये वर्क राइटिंग सेक्शन का है, इसको कंप्लीट करिएगा। कल फिर इस पर डिस्कस करेंगे 5 मिनट, और एक चैप्टर तैयार करके रखेंगे, द थिप्स स्टोरी, उसी पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फुटप्रिंट से। कल मिलेंगे फिर क्लास में। थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Welcome to all.